हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग कि आई एम नॉट द sort of person who is very good at marketing skills. I do not know how to market my channel as well as my videos. I'm not even interested in doing that, honestly. Not to suggest that I am, complaining about the kind of growth my channel is witnessing at the moment, because my recent videos, I do not know why they aren't picking up and why the reach is not getting expanded. But all I want from your side is to like the video, as it is very important for me, क्योंकि अगर videos पे views नहीं आएंगे एक substantial level, देखिए आपको मैं बताऊँ ना, तो इसका टारगेट काफी बड़ा है एक सब्सटैंशियल लेवल तक पहुंचने के लिए। एंड आई एम नॉट अ वेरी टेक सेवी पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसको जो मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो आई एम द kind of person who can only work hard and can provide you with pure efforts in terms of, see, when I started with this channel, I had only one thing in my mind, that I know certain things and I have a fair understanding of a lot of things. I want to put my brains in front of yours, right? I want to provide you a line of thought so that when you look at things, you look at them not in an isolated manner, not as an isolated events, in a comprehensive manner, so that you connect the dots both backwards as well as forwards. तो अगर आप सच में मेरे एफर्ट्स को वैल्यू करते हैं, please, this is a humble request. Please hit the like button, comment and tell me, and subscribe to my channel if you haven't done that. Share it with others. If you have friends who would really benefit from this initiative, please let them know also, because a lot of hard work is involved in creating these videos and stuff like that. Seriously, I'm not lying at all. A lot of, and मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर कोई बताता है कि सच में उनको हेल्प कर रहा है तो। लेकिन ऑब्वियसली इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई टेक दिस एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स कि मुझे रोज ये प्रोवाइड करवाना है आपको। बट beyond a point, I also want my channel to grow, of course. And I don't think there's anything wrong in expecting that. Why not? I seriously want my channel to grow. I want to have a lot more people connected to me. So that way you can always help me out in, doing that, because liking the video is very important. Please do that. Now, as far as today's video is concerned, it is going to be very interesting. थोड़ी सी अगर बाय चांस थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो आप ही का फायदा है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। As always, I will be discussing very beautiful ethics के examples, not just ethics के examples. पता है कहीं चीजें जो मैं डिस्कस करती हूँ, they're actually things you should be appreciating कि आपकी कंट्री में हो रही हैं। They're actually things you should stop for a moment and ponder over it. Think about it कि क्या एक्चुअल में आपकी क्या सोच है इस बारे में। And it would take not more than 2 minutes to sit and just quietly think about it. Seriously, think about things. And to appreciate how our society is actually progressing towards a better version of itself. And that is the sole reason why I provide you with various case studies and ethics examples. So as always, that is going to be included. And there is a very, very beautiful and comprehensive editorial by C. Raja Mohan, a realist scholar and international expert. I cannot put more, descriptions and adjectives to his feathers, because he has already earned a lot in his name. So yes, a very beautiful editorial जिसमें उन्होंने ये बताया है कि चाइना और जो चाइना क्या सोचती है ना कि ये अगर बाय चांस वो ईस्ट चाइना सी और ताइवान में ही इन्वॉल्व रहेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडिया को बेनिफिट होगा। तो उन्होंने कहा है चाइना कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला। और बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। आई विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन, तो प्लीज स्टे टिल देयर। और भी बहुत सारी चीज़ें कि साउथ एशिया में कैसे एवोल्यूशन है एंटी टेरर लॉज की, ये सब कुछ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। यू विल लर्न अ लॉट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया ईरान साइन पैक्ट टू एड मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स। देखिए क्या हुआ है, मैं पहले एक कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ, फिर मुझे आपको बहुत कुछ बताना है जो मैं इसके बाद बताऊंगी। Okay, since I was being asked to zoom in the article further and hence I am doing this,
आई होप दिस वुड हेल्प यू गाइज फर्दर। देखिए क्या हुआ है कि इंडिया और ईरान के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। आपको अगर पता है कि इंडिया के पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर कौन है, तो वो है सर्बानंद सोनोवाल जी। उनके बीच में और ईरानियन काउंटर पार्ट जो है उनके बीच में एक म्यूचुअल ये साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU। जिससे वो क्या, मैं सिर्फ अभी पढ़ रही हूँ, आपको सब कुछ बताऊंगी मैं। जिससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज ने रेकग्नाइज किया है कि वो एक दूसरे को सर्टिफिकेट्स ऑफ कंपिटेंसी जो अनलिमिटेड वॉयजेस में मिली हुई है सी फेयरर्स को, डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सी फेयरर्स को मिली हुई है, दोनों रेकग्नाइज करेंगे एज पर द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स 1978। ओके, सो ये कब साइन किया गया है, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल जी एक 3 डे विजिट पे हैं ईरान में। ओके, और इन्होंने बहुत कुछ छाबहार के बारे में बात किया कि ये बहुत ही छाबहार को हमें और एक्सपैंड करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड मल्टीप्लायर की तरह काम कर सकता है। ये पूरे रीजन के लिए, सेंट्रल एशियन रीजन के लिए, साउथ एशियन रीजन के लिए, और भी कंट्रीज इसमें ऐड हो सकती हैं। बहुत कुछ ऐसा ऐसा इन्होंने डिस्कस किया। ओके, तो इससे ट्रेड और शिपिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है। अब देखिए, आप जो मैं एक एक वर्ड बोलूं उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जानना सबसे पहले आपके लिए बहुत जरूरी है। टाइम एंड अगेन वी रीड अबाउट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा MOU साइन किया, फिर किसी और ने साइन किया, कभी कभी गवर्नमेंट ही प्राइवेट कंपनीज के साथ MOU साइन करती है। व्हाट इज एन MOU? यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। देखिए, MOU एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट होती है। नॉन बाइंडिंग मतलब ये कोई एक लॉ नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है बाय चांस आपने अपने वर्ड्स से बैकआउट कर गए आप, तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, या फिर आप पे कोई ऐसी एलिगेशन नहीं लगेगी कि आप एक फ्रॉड हो और आपने हमारे साथ की हुई ट्रीटी को खारिज कर दिया। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। इट इज अ नॉन बाइंडिंग ट्रीटी दैट स्टेट्स के ये मेंशन करती है कि दोनों पार्टीज का जिन्होंने आपस में MOU साइन किया है उनका एक इंटेंशन है। इट इज लाइक अ लेटर ऑफ इंटेंट कि वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस पे भी वो MOU साइन हुआ है उसमें एक्शंस लेंगे। एक एक तरह की पार्टनरशिप में दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे। सो MOU ये होता है। ओके, अब अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सी फेयरर्स क्या होते हैं। सी देखिए, व्हाई आई इंटेंड टू प्रोवाइड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू यू, बिकॉज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड सच वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, इट्स ऑफ नो यूज। आप रट के कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड इट इज वेल प्रूवन कि एक सिंपलिस्टिक वे में समझी हुई चीजें ही आपको इन द लॉन्ग रन हेल्प करेंगी। इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, सो व्हाट आर seafarers? Who are seafarers? They are the persons who have been employed by a ship owner to do ship service on board when a ship is at sea. मतलब अगर एक शिप है मेरी, मैं ओनर हूं अपने शिप की, मेरे पास लाइसेंस है, ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ माई शिप, बट आई हैव टू एम्प्लॉय सर्टन पीपल। जो मेरी शिप अगर बाई चांस सेल कर रही है, मैंने यहाँ से कुछ अपना प्रोडक्ट्स भेजे हैं बाहर सी के माध्यम से, तो उसको बीच में रीफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, उसको चलाना पड़ेगा, उसमें जो भी सर्विसेज होती है, मेंटेनेंस सर्विसेज उधर ही अगर सी पे है तो उसको संभालने के लिए कुछ लोग चाहिए। तो वो वो होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं जो शिप के सर्विस के लिए यूज किए जाते हैं, एम्प्लॉय किए जाते हैं शिप पे, उन्हें सी फेयरर्स कहते हैं। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखिए इन्होंने आपस में ये जो कहा है कि हम रिकग्नाइज करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम एक दूसरे की कंट्री द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट्स ऑफ कंपिटेंसी इन अनलिमिटेड वॉयजेस को रिकग्नाइज करेंगे। देखिए इसका क्या मतलब है। अगर तो ये म्यूचुअल वो है, मतलब दोनों ने अगर डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे की कंट्री द्वारा दिए हुए इन सर्टिफिकेट्स को रिकग्नाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि देखिए, ईरान है, इंडिया है। ईरान ने अपनी कंट्री में जो उन्होंने ट्रेन किए होंगे सी फेयरर्स को, है ना, अपने वहां पे ऐसे तैयार किए होंगे लोग, तो उनको कुछ ऐसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होगा अपनी ट्रेनिंग के बाद कि आप कंपीटेंट हैं, आप एलिजिबल हैं, आप प्रॉपरली ट्रेन्ड हैं कि आप अनलिमिटेड वॉयजेस को अंडरटेक कर सकते हैं। सेम इंडिया ने अपने ट्रेन पर्सोनल को किया होगा, अपने ट्रेन एम्प्लॉयज को किया होगा, अपने ट्रेन सी फेयरर्स को किया होगा। अब दोनों ने एक दूसरे अपने अपने सी फेयरर्स को ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। लेकिन अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, इससे क्या होगा कि अगर बाय चांस एक ईरानियन शिप है,
ठीक है। अब आपको पता है कि अगर किसी कंट्री की शिप है तो फ्लैग भी ईरान का होगा उस पे, अगर इंडिया की शिप है तो इंडिया का फ्लैग होगा उस पे। लेकिन आप एक शिप में जो ईरान की है, ईरान का उस पे झंडा लगा हुआ है, उसमें आप अब क्या होगा कि आप जो इंडिया ने अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे अपने सी फेयरर्स को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, वो वहां पे भी उनको एम्प्लॉय करने के लिए चल जाएंगे। मतलब इंडियन सी फेरर जो हैं वो भी अब एम्प्लॉय हो सकते हैं ईरानियन शिप्स पे, क्योंकि वो तैयार हैं जो इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। सेम वाइस वर्सा इंडिया के केस में भी है, इंडिया भी ईरानियन उसको ले लेगा सी फेरर्स को अपनी शिप के झंडे के अंदर। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखने का एक नया तरीका है। देखिए हम अनएम्प्लॉयमेंट को जब पढ़ते हैं तो हम बहुत ही क्लीशे चीजें पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं सजेस्ट कर रही कि एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि एम्प्लॉयमेंट को और भी जगहों पे इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, तो थिंक अबाउट इट। और फिर अगर हम बात करें जब ये हो जाएगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। लेकिन पता है इसमें India will stand to be benefited more than Iran. Why? Because India has a very wide pool of trained seafarers. Definitely, ईरान के पास इतने ज़्यादा seafarers नहीं है। India stands to be benefited more. तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक बात किया, ये जो बात की है मैंने कि ये किसके तहत साइन किया गया है MOU, एक कॉन्वेंशन है, कॉन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सीफेयरर्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है STCW कॉन्वेंशन। ओके, 1978 में से, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये एक्चुअली साइन किया गया था। अब देखिए ये क्या है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। देखिए इट इज़ अ कन्वेंशन जो सेट करता है कुछ क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को, कि जो शिप्स पे फॉर एग्जांपल जो मास्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वॉच कीपर्स हैं यानी वॉच पर्सोनल हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस हद तक उनको ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए ताकि वो उस एम्प्लॉयमेंट के लिए दे आर रेडी। ठीक है, तो इसको अडॉप्ट जैसे कि मैंने बताया 1978 में किया गया था। लेकिन कहाँ किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, IMO। मैंने एक बार इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। IMO की कॉन्फ्रेंस पे जो लंदन में कंडक्ट हुई थी, वहां पे इट एक्चुअली गॉट अडॉप्टेड, लेकिन इट केम इनटू फोर्स इन 1984। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट 6 years आफ्टर इट वाज एक्चुअली साइंड। और अगर बात करें कि ये एक पहली ऐसी कॉन्वेंशन है जो एस्टैब्लिश करती है बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, कि किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सब, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको इस कन्वेंशन का पता होना चाहिए वो ये है कि इट नॉट ओनली अप्लाइज टू शिप्स जिन पार्टीज ने इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर बाय चांस आप एग्जांपल लीजिए, कोई भी एक एक्स कंट्री है, उसने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन एक वाई कंट्री है, वो एक्स कंट्री की जो शिप वाई कंट्री के अगर वहां से पास करती है, पोर्ट्स पे विजिट करती है, तो उस पे भी अप्लाई करेगा, चाहे उसने साइन की हुई है एक्स कंट्री ने, नहीं की हुई, लेकिन वाई कंट्री ने तो साइन की हुई है, राइट? तो वो उस पे अप्लाई करेगा। सो इट ऑल्सो अप्लाइज टू द शिप्स ऑफ नॉन पार्टी स्टेट्स व्हेन दे विजिट द पोर्ट्स ऑफ स्टेट्स विच आर एक्चुअली द पार्टीज टू द कॉन्वेंशन। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट इसमें हुई थी एक मनीला अमेंडमेंट, ठीक है, संशोधन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मनीला में हुआ था। तो मनीला अमेंडमेंट इसको दिया गया था, इस कॉन्वेंशन को, इस कोड को, जो कब हुआ था, 2010 में, 25 जून 2010 में। अब देखिए मैं बता देती हूँ एक सिंपल सी चीज कि ये जो अमेंडमेंट हुई थी, मनीला अमेंडमेंट, ये क्यों हुई होगी। आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे आपको समझ आ जाएगी कि जिस स्तर पे अवेयरनेस बढ़ रही है, आप समझ सकते हैं क्लाइमेट चेंज की, मेरीटाइम सेफ्टी की, नेशनल सिक्योरिटी की, और पोल्यूशन नहीं होना चाहिए वेसल्स की वजह से। आपको पता है ना, पीछे ऑब्वियसली बहुत से सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह बहुत कुछ शिपिंग वेसल्स पीछे अपने रिलीज करती हैं, बहुत कुछ ऐसा। तो इन तरह की इवॉल्विंग सिचुएशन से कैसे डील किया जाएगा, इस मनीला अमेंडमेंट ने उसमें भी कुछ बेंचमार्क्स सेट किए थे। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसा मैंने ये सी फेयरर्स की बात की, तो इन्होंने छाबार वगैरह की बात की, इसी
आपको आपको याद होगा मैंने SCO की बात की थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें आपको पता है ईरान एक न्यू मेंबर बनने वाला है, बन चुका है ऑलमोस्ट। तो ईरान जब बन रहा था तो फिर दोनों ने, इंडिया ने भी वेलकम किया, पाकिस्तान ने भी वेलकम किया, बिकॉज बोथ आर द मेंबर्स ऑफ SCO। ओके, बट देखिए दोनों ने अपना नैरेटिव रखा। पाकिस्तान तो अलग ही, पाकिस्तान कहता है कि ये जो CPEC है, जो चाइना और हमारे बीच में, हम चाहते हैं इसको एक्सपैंड करें। हम चाहते हैं CPEC में ईरान जैसी कंट्रीज ऐड हो जो और भी बेनिफिशियल होगा उनके लिए, विच इज़ नॉनसेंस। इंडिया कम्प्लीटली रिफ्यूटेड दैट, क्योंकि जो CPEC है वो POK रीजन से पास होता है। वो जो जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो जो ब्रिजेस, हाईवेज जो भी है, वो हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन से पास होते हैं, जिसको हम राइटफुली अपना मानते हैं, है ना। तो इंडिया रिफ्यूटेड इट और इंडिया ने अपना नैरेटिव रखा। इंडिया ने कहा कि हम छाबहार पोर्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक कोऑपरेटिव स्टेप है, हम चाहेंगे छाबहार पोर्ट को एक्सपैंड किया जाए। इसमें अभी तो ईरान, अफगानिस्तान ये सब बेनिफिट हो रहे हैं पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, लेकिन हम चाहेंगे और कंट्रीज ऐड हो, इसको एक्सपैंड करेंगे। सेंट्रल एशियन बाकी कंट्रीज हैं जितनी, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब भी ऐड हो। और दिस इज हाउ इंडिया पुट इट्स ओन नैरेटिव, सो यू मस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। टमेटो फ्लू डिटेक्टेड अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया, सेज लैंसेट। देखिए मैं पहले इसको पढ़ूंगी, फिर थोड़ा सा जो आपके लिए जानना जरूरी है मैं वो बताऊंगी, इसका एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ओके, देखिए लैंसेट आपको पता है कि एक जर्नल है, बहुत बड़ा और काफी रिनाउंड जर्नल है। इसमें अब एक चीज छपी है कि ये जो न्यू इन्फेक्शन है, अभी मैं बताऊंगी इसको टमेटो फ्लू या टमेटो फीवर क्यों कहा जाता है, वो भी बताऊंगी आपको। तो ये जो इंडिया में डिटेक्ट किया गया है, जो 5 साल से कम एज के बच्चे हैं उनमें, तो इन्होंने कहा इट इज नॉन लाइफ थ्रेटनिंग। ऐसा नहीं है कि ये फेटल है, इससे डेथ्स का चांसेस बहुत ही कम है। ये जो वायरस ये जो स्प्रेड कर रहा है, स्पेशली जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में मई 6 को, ठीक है। लेकिन अब हमारे इसका स्टेटस देखें, इसके एक्सपेंशन का स्टेटस देखें, 82 चिल्ड्रन हैव बीन डिटेक्टेड विद दिस वायरस, ओके, एंड दे ऑल आर यंगर देन 5 years ऑफ एज। ओके, तो अभी ये सब बात चल रही है। और बात किया जाए तो अपार्ट फ्रॉम केरला कहाँ कहाँ पे उसका एक्सपेंशन हो चुका है, स्प्रेड हो चुका है इस वायरस का, इट इज तमिलनाडु एंड उड़ीसा एज वेल। देखिए केरला, तमिलनाडु एंड उड़ीसा, एक्सेप्ट दीज 3 regions, there is no other region in India which has been reported to be affected by the virus. You must keep that in mind. Let's see how the situation evolves further. Well, it is definitely of concern and should be mitigated at the earliest possible time. तो हम देख लेते हैं इसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या है। देखिए इसके सिम्टम्स बिल्कुल चिकनगुनिया जैसे हैं, जैसे हाई फीवर, बॉडी पे रैशेस, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन होना, नीज में बहुत ही ज़्यादा थकान, बहुत नॉशियस फील होना, उल्टी आने जैसा फील होना, पूरे टाइम चक्कर चक्कर आते रहना, डिहाइड्रेशन होना, ये सब कुछ, ठीक है, इसके बेसिक सिम्टम्स हैं। और देखिए क्योंकि मैंने कहा ये चिकनगुनिया जैसा ही है, तो इसके जो फिर इसको ट्रीट करने के जो मेजर्स हैं वो भी चिकनगुनिया वगैरह जैसे ही हैं। बाकी जो होते हैं जैसे आइसोलेशन, रेस्ट करना, फ्लूइड्स का इंटेक ज़्यादा लेना, स्पेशली नारियल पानी वगैरह जैसे, हॉट वाटर स्पॉन्ज देना ताकि बॉडी को मतलब थोड़ा सा इरिटेशन कम हो, राइट। हॉट वाटर को जो स्पॉन्ज से थोड़ी सी वो करना, पंचिंग करना, एंड इससे मतलब थोड़ा सा उनको रिलीफ फील हो। और सपोर्टिव थेरेपी के लिए जैसे फीवर वगैरह जो सिम्टम्स को कम करती है। देखिए आप, ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, इन द सेंस ये खुद कुछ पीरियड तक रहेगी, 10-12 दिन, और खुद अपने आप ठीक हो जाती है ना। लेकिन सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन अब उस दौरान 10-12 दिन में इतना ज़्यादा बुखार चढ़ा है, उस सिम्टम को तो कुछ करना है ना, तो उसके लिए पैरासीटामोल और ऐसी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। अब ये कॉन्टेजियस भी है, फैलने वाला है। बच्चे अगर बाई चांस कुछ जहाँ पे इन्फेक्शन है उस चीज़ों को मुंह में डाल लेते हैं, इससे भी इन्फेक्शन होता है। बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट वो जो नैपीज वेयर करते हैं उनसे, एक दूसरे को टच करने से, इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी कॉन्टेजियस डिसीज। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो मुझे आपको समझाना है वो ये है, अगर आप पढ़ सकते हैं, The tomato flu is caused by a Coxsackie virus A16. It belongs to enterovirus family और यही सब कुछ इधर लिखा है। देखिए ये एंटेरोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है ना। व्हाट इज एन एंटेरोवायरस? देखिए मैंने आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी कि हमें ना
सबसे इंपॉर्टेंट जो जानना है, हर जितने सारे वायरल डिसीज आ गए हैं, आप खुद सोचिए, कोविड-19 सबसे पहले, ठीक है, फिर मंकी पॉक्स, फिर बहुत कुछ, मंकी पॉक्स का हम देख रहे हैं सिमिलैरिटीज स्मॉल पॉक्स से क्या है, हम बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हैं, राइट। फिर हमने लंपी स्किन डिसीज पढ़ी। आपको हर एक डिसीज का, हर वायरल, उसका जेनेटिक मटेरियल पता होना चाहिए कि वो आरएनए है या फिर डीएनए है। दिस इज अ मस्ट, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू शुड लुक एट थिंग्स, ओके। तो अगर हम देखें तो लंपी स्किन डिसीज का मैंने, अगर आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं इसमें से कौन सा डीएनए वायरस है या फिर इसमें से कौन सा आरएनए वायरस है, यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ऑलराइट। तो अगर हम एलएसडी की बात करें, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, वो एक डीएनए वायरस है। अगर मैं एचआईवी की बात करूं, वो एक रेट्रो वायरस है, यानी कि एक आरएनए वायरस है। अगर मैं बात करूं मंकी पॉक्स की, है ना, मंकी, देखिए एलएसडी भी एक पॉक्स वायरस है, मंकी पॉक्स भी एक पॉक्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स भी एक पॉक्स वायरस है। तो हर पॉक्स वायरस एक डीएनए वायरस होता है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें एंटेरो वायरस की, अगर आपको एंटेरो वायरस या फिर इसका ये जो नाम लिखा है यहाँ पे कॉक्सैकी वायरस या फिर टमेटो फ्लू लिखा हुआ मिल जाए ऑप्शन में, तो इसका जेनेटिक मटीरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ओके, आरएनए। यू मस्ट रिमेंबर एचआईवी और इसका आरएनए है, ओके। अब हम बात करते हैं एंटेरोवायरस होते क्या हैं। देखिए ये आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, पर क्योंकि आपको कभी रटने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए मैं आपको चीज बता देती हूँ। एंटेरोवायरस ना, देखिए एंटेरिक एक वर्ड है, एंटेरिक वर्ड मतलब होता है इंटेस्टाइनल, मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इस जगह मैं बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रही हूँ। तो जिस भी वायरस का जो ट्रांसमिशन रूट है वो इंटेस्टाइन से होके गुजरता है, यानी कि फीकल ओरल रूट होता है, या तो वो जैसे मैंने बताया बच्चे मुंह में कुछ डाल लें, या फिर इन्फेक्टेड अगर किसी का एक्सक्रीटा है उसके कांटेक्ट में आ जाए, या फिर एयर के भी कांटेक्ट में, इस तरह से कोई किसी ने स्नीज किया, इन तरह की जो चीजें हैं, जो फीकल ओरल रूट होता है, उसे एंटेरोवायरस उनकी कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम एंटेरोवायरस की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पे कॉक्सैकी वायरस, है ना, वैसे ही देखिए ये है कॉक्सैकी वायरस ए, जो हम टमेटो फीवर की बात कर रहे हैं। ऐसी एक टाइप होता है कॉक्सैकी बी, फिर एक होता है एक्नो वायरस या फिर एको वायरस, फिर चौथा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एक्चुअल में आपको याद रखना है, वो है पोलियो वायरस, okay, you must remember polio virus and tomato fever or tomato flu belongs to the enterovirus family, जिनका जो genetic material है वो single stranded RNA है। Now why the name tomato flu, why the name tomato fever, simply because जो rashes होते हैं वो होते तो starting में छोटे छोटे से हैं body पे, लेकिन बड़े होते होते tomato shaped blisters छाले के form में बन जाते हैं, and hence the name tomato flu. All right, I hope you got it. Okay, very important again. इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू बूस्ट टाइज ऑन एडुकेशन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अब दोनों ने आपस में बातचीत करके ये डिसाइड किया है कि वो एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारे तरीकों को कि वो एक प्रमोट कर सके टू वे मोबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज बिटवीन देम। इसीलिए उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप को भी सेटअप किया है ताकि ट्रांसनेशनल एडुकेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया जा सके, ओके। तो ये क्यों हुआ है, किस डिस्कशन दौरान हुआ है, क्योंकि जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने विजिट किया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल, मैं भी आपको बताऊंगी इससे होगा क्या, ठीक है। इससे पहले आप सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल एक हमारे बीच में एक एक काउंसिल है, एक रिलेशन है हमारे बीच में, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है। तो उसकी 6th मीटिंग पे ये डिस्कस किया गया है, and it is a forum which is meant to advance ties and boost engagements in education, skill development and research priorities. Okay, now when I said कि ये लोग टू वे मोबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज और स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इनवाइट किया जाएगा कि आप अपने कैंपसेस सेट करो इंडिया में। जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज और स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस को जो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनको इनवाइट करेगा कि आप अपने कैंपस सेट करो ऑस्ट्रेलिया में। दिस इज हाउ दे विल एक्सप्लोर द थिंग्स, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये शायद पहले भी डिस्कस किया है लेकिन आज हम एक स्टोरी के फॉर्म में इसे समझने की कोशिश करेंगे। टू सैल्वेज अ वर्ल्ड कप
सुप्रीम कोर्ट सेंड्स बॉल बैक टू AIFF कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम टर्मिनेट करते हैं कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के मैंडेट को, उनके पर्पस को। अब उनका जो पर्पस हमने उनके साथ अटैच किया था, कमिटी इज नॉट मेंट फॉर इट। देखिए क्या पर्पस था, मैं आपको अभी सब कुछ बताऊंगी, लेकिन क्योंकि हमें एक कर्सरी रीडिंग देनी है इसीलिए उनका पर्पस ये था कि वो मैनेज करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अफेयर्स को। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि फीफा ने हमें सस्पेंड कर दिया है, AIFF को सस्पेंड कर दिया है इंटरनेशनल इवेंट्स से। इसका देखिए अब हम पूरा एक एक चीज समझेंगे। अगर हम बात करें कि इशू क्या है, जैसे मैंने बताया कि फीफा ने सस्पेंड कर दिया है कंट्री के हमारे जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसको। क्यों? उन्होंने रीजन स्टेट किया है फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज। ओके, अब इसका अगर हम देखेंगे क्या असर हम पे पड़ने वाला है, ये अगर सस्पेंशन ये कंटिन्यू रही तो जो हम अक्टूबर 11 से अक्टूबर 30 के बीच में 2022 में ही जो हम फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप शेड्यूल करने वाले हैं, होल्ड करने वाले हैं, कंडक्ट करने वाले हैं, हम उसका राइट खो देंगे। हमें सबसे पहले जानना है फीफा के बारे में थोड़ा सा। फीफा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी अगर आपको फुल फॉर्म पता है, इट इज फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। ये हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है एक फुटबॉल की पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो आपको ये पता होगा कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था 1904 में। ओके, और क्यों? देखिए जब ये इसका कॉन्सेप्ट आया था फीफा का, तो ये इंटरनेशनल कंपटीशन कुछ कुछ कंट्री के बीच में ही रेगुलेट करने के लिए आया था, जैसे बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, है ना, इन कंट्रीज के बीच में। लेकिन अभी हम फीफा की बात करें तो इसके जो मेंबर नेशंस हैं, इट हैज गॉन अप टू 211। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है ज़्यूरिख। ज़्यूरिख कहाँ पर है? ज़्यूरिख आपको अगर पता होगा, ज़्यूरिख इज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फीफा के, क्या करता है, तो देखिए इसका अगर हम इसके मतलब मैंडेट की बात करें ना, तो इसका जो पर्पस है इसके एस्टैब्लिशमेंट का वो ये था कि फुटबॉल को इंटरनेशनली एक्सपैंड करेगा, स्प्रेड करेगा, और एक फेयर प्ले प्रमोट करने की कोशिश करेगा और इंटीग्रिटी प्रमोट करने की कोशिश करेगा इस गेम ने। ओके, और आपको एक चीज और जो पता होनी चाहिए वो ये है कि बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को, जैसे मेंस वर्ल्ड कप जो 1930 में स्टार्ट हुआ था और वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 1991 में स्टार्ट हुआ था, आप देखिए कितना बड़ा गैप है। व्हेन डिड एक्चुअली women entered into the football era, कितना ज़्यादा गैप है मेंस वर्ल्ड कप में और वुमेन्स वर्ल्ड कप में। तो अगर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, ये है कि ये अफिलिएटेड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, IOC से। अभी हम IOC पे भी एक न्यूज़ आई है इंडिया से रिलेटेड, वो भी देखेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, स्टेटस को एट IOA कंटिन्यूज, अभी हम देखेंगे बाद में इस न्यूज़ को भी। तो जो फीफा है ये अफिलिएटेड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से भी, और ये इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड का भी मेंबर है। देखिए आप बहुत बार ही पढ़ते हो कि अफिलिएशन, व्हाट इज अफिलिएशन? अफिलिएशन होता है किसी भी दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में फॉर्मल रिलेशनशिप का एस्टैब्लिश होना। आप मेंबर बन के भी किसी के साथ अफिलिएट हो सकते हो, या वैसे भी आप कॉमन कंट्रोल्स, अगर जैसे कुछ क्वालिफिकेशंस वो रख रहे हैं, कुछ कंट्रोल या रेगुलेटरी मेजर्स अगर IOC रखता है, तो सेम वैसा ही फीफा करने की कोशिश करता है, कॉमन कंट्रोल मेजर्स। अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में आपको एफिलिएशन का मतलब समझाऊं ना, तो आपने बहुत बार ही देखा होगा कि एक मेडिकल स्कूल है, फॉर एग्जांपल एक MBBS करवाने वाला कॉलेज है। एक MBBS करवाने वाले कॉलेज का हमेशा ऑलमोस्ट हर केस में आपको एक एफिलिएटेड वो भी मिलेगा, हॉस्पिटल भी मिलेगा, जहाँ पे वो सजेस्ट कर देते हैं। बहुत बारी जो बच्चे होते हैं वो इंटर्नशिप भी वहीं करते हैं, तो क्योंकि वो अफिलिएटेड होता है उससे। ठीक है, कॉमन कंट्रोल मेजर्स, कॉमन काइंड ऑफ करिकुला। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस गेम को मैनेज करती है इंडिया में। ठीक है, तो हम बात किया जाए तो ये कब फाउंड हुआ था? इट वाज इट एक्चुअली गॉट फाउंडेड इन 1937, और इसको फीफा की एफिलिएशन मिली थी 1948 में। बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम इंडिपेंडेंस से पहले हमने इसको एस्टैब्लिश कर लिया था 1937 में, लेकिन हम इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि 1948 में हम फीफा से एफिलिएट हुए थे। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि
AIFF का ऑफिस कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? आई वुड एक्चुअली वांट टू नो। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगी बाद में। ओके, कभी कल बता दूंगी मैं आपको, या फिर मैं कमेंट करके बता दूंगी, पर आई वुड एक्सपेक्ट अ रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। और अगर हम बात करें कि ये जो क्या है, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल इशू, क्या पॉलिटिक्स है क्या नहीं है, क्या है ये एक्चुअल में, क्यों बैन किया गया फीफा को, फीफा ने क्यों बैन किया AIFF को? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि AIFF का ना एक प्रेसिडेंट थे, आपको पता होगा, प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल पटेल जी वही इंसान है, वही एडमिनिस्ट्रेटर है जिनको लक्षद्वीप में, अगर आप पिछले 1.5 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली, शायद 1 साल पहले, ये लक्षद्वीप में भी आपने देखा होगा, लक्षद्वीप के लोगों ने प्रोटेस्ट करनी शुरू किया था, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं होता। आज तक हमेशा IAS ऑफिसर्स वहाँ पे रिक्रूट किए जाते थे, वहाँ पे पोस्ट किए जाते थे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी एक पॉलिटिशियन है। ही बिलोंग्स, ही इज अ फॉर्मर गुजरात कैबिनेट मिनिस्टर। यू मस्ट नो दैट। एक पहली बार ऐसा हुआ था कि लक्षद्वीप में भी प्रफुल्ल पटेल जी एक पॉलिटिशियन का एडमिनिस्ट्रेटर बनना काफ़ी अजीब था। फिर उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि वहाँ की इकोलॉजी को उन्होंने बहुत सारे काउ बैन्स, और जहाँ पे एक भी काउ नहीं है उस जगह पे आप काउ बैन लगा रहे हो, किस तरह का टेरर क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी, ऐसा क्रिटिक्स ने कहा था। बहुत सारी और चीज़ें, क्योंकि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और भी ऐसी चीज़ें बहुत कुछ था, तो हुआ था, लेकिन दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रफुल्ल पटेल जी प्रेसिडेंट थे AIFF के, ठीक है, और एक काउंसिल मेंबर भी थे, फीफा काउंसिल मेंबर। तो उन्होंने मना कर दिया था, काफ़ी सारी पॉलिटिक्स अंदर चल रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ूंगा, आई विल कंटिन्यू टू बी प्रेसिडेंट ऑफ दिस बॉडी एंड आई विल नॉट लीव माई पोस्ट। तो फिर बहुत उन्होंने कहा अच्छे से, उन पे काफ़ी वो थी, वो ढंग से संभाल नहीं पा रहे थे फीफा को, तो उन पे काफ़ी वो था कि आप छोड़िए, आप रिजाइन करिए, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर अनवर्दी ऑफ द पोस्ट दैट यू आर ऑन। तो फिर उसके बाद उन्होंने रीज़न दिया कि यार पैंडमिक चल रहे थे टाइम से, फिर उसके बाद ये सब वगैरह कोर्ट केसेस में भी घुसा रहता है AIFF, तो इसलिए नहीं हो पा रहा। फिर क्या हुआ, फिर आता है एक्चुअल मुद्दा, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्यों हुआ? देखिए, फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया प्रफुल्ल पटेल को अपनी पोस्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखिए प्रेसिडेंट तो हट गए, फिर कौन कौन अफेयर्स को मैनेज करेगा AIFF के? तो फिर उन्होंने बनाई एक कमिटी, एक अपॉइंट की कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो रन करेगी AIFF को। अब बहुत क्लियरली फीफा का स्टैट्यूट ये कहता है कि मेंबर फेडरेशन शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी लीगल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, इंडिया का ये जो केस है। क्योंकि अब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक मेंबर एसोसिएशन जो है फीफा की, इट फेल्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट, इट गेट्स को-ऑप्टेड, और नो लॉन्गर वो खुद का कंट्रोल खुद मेंटेन कर पाए, तो ऐसा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, नाउ व्हाट डज दिस सस्पेंशन एक्चुअली मीन टू अस, क्या इस सस्पेंशन से हम पे इफेक्ट पड़ेगा? जैसे अभी हमने देखा कि हम नहीं कंडक्ट कर पाएंगे अंडर 17 वाला जो अक्टूबर में होने वाला है। और क्या क्या एक जनरल लेवल पे अगर मैं बात करूं, इससे क्या होगा कि किसी भी तरह की फुटबॉल पार्टिसिपेशन इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे खत्म हो जाएगी। इट विल अप्लाई टू ऑल नेशनल फुटबॉल टीम्स, क्लब टीम्स, हर एज ग्रुप में जो स्प्रेड करती है, ठीक है। और क्या इंटरनेशनल ट्रांसफर्स इम्पैक्ट होंगे? मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है, देखिए, जो फीफा है ना, वो बहुत सारे कोर्सेज बनाता है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाता है, ताकि वो क्वालिफिकेशन और एनहांस कर सके, ग्रो कर सकें, जितने भी फुटबॉलर, जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनके लिए कोर्सेज बताता है। उन तरह में अब नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगी हमारी जो AIFF है, वो लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, ट्रेनिंग वगैरह किसी चीज़ को पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अब जो इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली अब हो गए, लेकिन जो AIFF है, जो भी फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंडिया में है, वो तो आप दे विल कंटिन्यू टू रन द वे दे हैव बिन, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखना है। देखिए, एक रशिया ने हमें क्या बताया है, रशिया ने बोला है कि एक इस्लामिक स्टेट यानी IS के एक मेंबर, जिन्हें सेंट्रल एशिया से पकड़ा गया है, वो प्लान कर रहे थे एक सुसाइड अटैक इंडिया में। उनको रशिया ने डिटेन कर लिया है, मतलब कैद कर लिया है, और
ये जो इंसान है, ये जो IAS मेंबर है, ये क्या करने वाले थे, ही एक्चुअली ट्रेवल टू टर्की। पहले वो टर्की गए, ठीक है। वे टर्की में उनको ऐसी पूरी इंस्ट्रक्शंस मिली कि कैसे कैसे उनको ट्रेनिंग की गई कि आपको एक ऐसे सुसाइड अटैक या टेरर अटैक कंडक्ट करना है। तो फिर मतलब उन्होंने सेल्फ डिटोनेशन यानी कि सुसाइड जो बम्बर्स होते हैं, मानव बम जिसे हम कहते हैं, वो करके ये क्या करने वाले थे एक्चुअली में, हमारे एक रूलिंग रजीम यानी कि आप कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट के कैबिनेट में से किसी को या फिर मोदी गवर्नमेंट की सरकार में से ही किसी को, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को ये टारगेट करने वाले थे, मारने वाले थे। तो अब इनको डिटेन कर लिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा दी गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आज ये देखिए, अगर आपको PMLA के बारे में जानना है, अ मस्ट रिकमेंड, आप प्लीज आइए मेरी 31 जुलाई की वीडियो देखिए। आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट। आपका जो थोड़ा समझने का वो है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने किन ग्राउंड्स पे अपहोल्ड किया उसको, ये सब कुछ पता चल जाएगा। आप फर्स्ट 27 मिनट्स देखिएगा 31 जुलाई की वीडियो के। आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, पर देखिएगा जरूर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, वो मान गए हैं कि हम ठीक है, रिव्यू करने के लिए तैयार हैं। अपने जो पहला हमने जो ऑर्डर दिया है, हमने जो जजमेंट दी है, PMLA में जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई थी जो सरकार ने, सेंटर ने की थी, उसको हमने सही यानी कि अपहोल्ड कर लिया था। उसको हम दोबारा से अपने ही जजमेंट को देखिए, इतनी क्रिटिसिज्म मिला है ना सुप्रीम कोर्ट को, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है कि आप सोच ही नहीं सकते। तो इसीलिए वो अब तैयार हो गए हैं कि ठीक है, हम दोबारा रिव्यू करेंगे अपनी ही दी गई जजमेंट को, देखते हैं कि हमने सही भी किया है कि नहीं। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, जब भी होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगी। ओके, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू एनी अदर आर्टिकल, मैं अब आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगी ये सी राजा मोहन का आर्टिकल, अ टेल ऑफ पुतिन एंड शी। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं बोलूं आप प्लीज उसको बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनिए, क्योंकि आई विल मेक दैट इजी फॉर यू। देखिए इंडिया क्या विश करती है, एक चाइनीज स्कॉलर है, उन्होंने ग्लोबल टाइम्स यानी कि एक वहाँ पे जर्नल, एक न्यूज़पेपर है, वहाँ पे ग्लोबल टाइम्स में कॉलम लिखा है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम्स आते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में कॉलम्स आते हैं, वहाँ ग्लोबल टाइम्स में जैसे कॉलम्स आते हैं, उस कॉलम में एक चाइनीज स्कॉलर ने, जिसका नाम है लिu जोंगी, उसने लिखा है कि इंडिया विश करती है, चाहती है कि वो इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन टू वॉच द टाइगर्स फाइट। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंडिया ये विश करती है कि वो आराम से बैठ के मजे ले, ऊपर से देखे कि चाइना और USA के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अनफोल्ड हो रहा है ताइवान में, वो आपस में कैसे लड़ते हैं और हम मजे लेंगे। ऐसा उस चाइनीज स्कॉलर का कहना है। और उस चाइनीज स्कॉलर का ये भी कहना है कि इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी निकलेगा अगर USA सफल हो जाती है अपने चाइना को कंटेन करने में ईस्ट एशिया में और वेस्टर्न पैसिफिक में। आपको अभी समझ आएगा कैसे, ठीक है। तो अगर USA सक्सेसफुल हो जाती है कि वो चाइना को वही इन्वॉल्व रखे ईस्ट एशिया में ही, वेस्टर्न पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, अभी जैसे ताइवान इशू उधर ही एंगेज रखे, इससे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इंडिया। कैसे, अब देखिए, सम चाइनीज माइट एक्सटेंड द आर्ग्यूमेंट टू यूरोप। अब देखिए कई चाइनीज स्कॉलर्स इस आर्ग्यूमेंट को यूरोप में भी एक्सपेंड करते हैं। कैसे, जो यूरोप में जो मतलब आप देख सकते हैं रशियन इन्वेजन हुआ है यूक्रेन का, है ना, जो इट एक्चुअली बिगैन 6 months अगो। और कहीं चाइनीज स्कॉलर्स ये भी कह सकते हैं कि ये जो USA वहाँ पे इन्वॉल्व है, फिर रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रही है, ये भी सूट करती है दिल्ली को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्रेमलिन यानी कि हम रशिया की बात करें और वेस्ट में ये जो लड़ाई है, उससे क्या होगा, वेस्ट और रशिया दोनों ही वीक हो जाएंगी, दोनों साइड्स वीक हो जाएंगी, जिससे इवेंचुअली एक राइजिंग इंडिया को उभरने के लिए जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब सी राजा मोहन जी ये कहते हैं कि देयर इज नो डाउट कि रशिया और वेस्ट दोनों ही इंडिया को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उनके सपोर्ट में आ जाए। वेस्ट भी यही कोशिश कर रहा है, रशिया भी यही कोशिश कर रहा है, हमें चीप ऑयल, हमको ये कहना है कि हम आपको ट्रांसफर करेंगे टेक्नोलॉजी अपने, हम कितने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं ना ये सब कि हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करेंगे, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी, बहुत सारी और चीजें, तो दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। देखिए लेकिन सी राजा मोहन जी का ये कहना है, ये जो हाइपर रियलिस्ट चाइनीज थिंकिंग है, जो इतनी रियलिस्ट के इंडिया एडवांटेज उठा लेगी खुद के राइज के लिए, क्योंकि चाइना घुसा रहेगा अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में और हमें मौका मिल जाएगा आगे बढ़ने का। तो सी राजा मोहन जी का ये कहना है कि इस तरह की रियलिस्ट, इतनी प्रैक्टिकल और दूसरों का फायदा उठाने वाली थिंकिंग तो कभी इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर का पार्ट रही ही नहीं मिस्टर, आपको तो ये पता ही नहीं है।
इनफैक्ट जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो इतनी ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, अच्छाई, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स इसमें घुसी हुई है कि इस तरह की बातें तो हम सोच ही नहीं पाते। और सी राजा मोहन जी का ये कहना है कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप ये देख लीजिए कि हम अभी भी दिल्ली इस इल्यूजन में जी रही है कि शायद एशियन सेंचुरी पॉसिबल है। मैंने आपको एशियन सेंचुरी को कॉन्सेप्ट बताया था कि एशियन सेंचुरी पॉसिबल है बीजिंग की पार्टनरशिप के साथ। हम आज भी ये सोच रहे हैं, तो आप तो कहाँ एडवांटेज ढूंढ रहे, हम अब भी सोचते हैं कि एशियन सेंचुरी यानी कि जो पहले अटलांटिक सेंचुरी हुआ करती थी, अब एशियन सेंचुरी आएगी जिसके मेन प्लेयर्स इंडिया और चाइना एक साथ मिलके पूरे वर्ल्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे वो एशिया में अनफोल्ड होंगे और सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी एशिया में देखी जाएगी, दोनों कंट्रीज इकट्ठे मिलके करेंगी। हम तो आज भी ये कॉन्सेप्ट जी रहे हैं, आप कहाँ इतनी रियलिस्टिक बातें कर रहे हो। अब देखिए इस इन्होंने और एग्जाम्पल दिया है कि ये जो चाइनीज स्कॉलर है वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर को अंडर एस्टिमेट मतलब मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो क्या एग्जाम्पल दिया है सी राजा मोहन ने कि चाइना जब आइसोलेटेड थी एशिया में, जब कोई भी नहीं पूछता था, पूरे वर्ल्ड में भी आइसोलेटेड थी, 1950 से 60s की बात है, ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब माओ ने 1949 में जब लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद चाइना तो अभी ग्रो ही करना स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो तब इंडिया ही था जिसने कैंपेन किया था पूरे संसार के सामने कि आप चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सेट कीजिए, आप एंगेज करना शुरू करिए चाइना के साथ। मैंने आपको बताया था कि हमने वन चाइना पॉलिसी भी 1949 में ही रिकॉग्नाइज कर ली थी इंडिया ने। और फिर इंडिया ही था जिसने जो एशियन जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने उनको ये दिलासा दिलाया था कि नहीं, चाइना एक बुरी कंट्री नहीं है, डू नॉट बी स्केप्टिबल अबाउट इट। क्योंकि बांडुंग कॉन्फ्रेंस आपको पता है 1955 में हुई थी, जिससे जो नॉन अलाइन जो मूवमेंट है वो चालू हुई थी, नैम। तो नैम में भी हमने बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जितनी भी एशियन ऑडियंस थी उनको यही कहा था कि हमें चाइना का साथ देना चाहिए, चाइना की ग्रोथ को हमें सराहना चाहिए, ऐसी चीजें हमने बोली थी। फिर ये दिल्ली ही था जिसने इंसिस्ट की थी कि बीजिंग यानी कि चाइना को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो उसको मिली भी। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि चाइना कैसे भूल गया इतना बड़ा हमारा दिया गया योगदान। नेहरू जी को इस चीज के लिए आज भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि ही वॉज फार टू आइडियलिस्टिक, कि उन्होंने इंडिया वॉज द राइटफुल ओनर। उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज थी जो इंडिया को एशिया का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में परमानेंट मेंबर बनवाना चाहती थी यूएनएससी का, लेकिन इंडिया ने हमेशा चाइना फर्स्ट स्ट्रैटेजी, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उसको परस्यू किया था एक बहुत लंबे समय तक। तभी चाइना फर्स्ट स्ट्रैटेजी के तहत ही हमने, आप देख रहे हैं जैसे किया, तो यही सब कुछ उन्होंने बोला। अब देखिए दिल्लीज कॉन्ट्रडिक्शंस विद बीजिंग आर स्ट्रक्चरल एंड नॉट एमिनेबल। देखिए हमें जब हम चाइना फर्स्ट स्ट्रैटेजी हम लोग ये जो परस्यू कर रहे थे, तब भी हमारे बीच में काफ़ी दिक्कतें थी, उसके बावजूद बहुत स्ट्रक्चरल दिक्कतें जिनका रेजोल्यूशन हमें उस टाइम भी पता था इतना आसान नहीं है, तब भी हमने चाइना का बहुत साथ दिया। और इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रिलक्टेंट टू कम टू टर्म्स विद दिस रियलिटी कि चाइना एक हमेशा हमारे साथ बुरा करता है। इस रियलिटी को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, एंड दिस हैज कॉस्ट इंडिया वेरी डियरली। और ये हमें इसका भुगतान बहुत बड़े स्तर पर चुकाना पड़ा, जैसे कि आप गलवान क्लैश में देख सकते हैं जो 2 साल पहले अप्रैल 2020 में हुआ, जिसमें पिछले 30 साल से एक पीस और ट्रैंक्विलिटी वहाँ पे मेंटेन्ड थी हमारे बॉर्डर पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसको सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली मतलब चाइना ने चेंज कर दिया उस स्टेटस को। तो अब देखिए सी राजा मोहन जी का ये कहना है कि शायद अब दिल्ली थोड़ी वाइजर हो गई है, गलवान क्लैश के बाद से थोड़ी हमें समझ आ गई है। हैंस आपने जयशंकर जी की स्टेटमेंट जो पिछले 2-3 दिन से मैं डिस्कस कर रही हूँ कि इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है, और तब तक सही नहीं हो जाता जब तक बॉर्डर पे सब कुछ सही नहीं हो जाता। तो ये सब कुछ इन्होंने बात की है। देखिए अगर इन्होंने कहा है चलो लेट्स रिटर्न टू ल्यूज जियोपॉलिटिक्स, मतलब वो चाइनीज स्कॉलर की जियोपॉलिटिक्स की जो इमेजिनेशन है उस पर रिटर्न करते हैं। सबसे पहली बात तो सी राजा मोहन जी ने कहा है कि कोई माउंटेन है ही नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया विशेस टू सिट एट द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड लुक द टाइगर्स एंड वॉच द टाइगर्स फाइट। पहली बात तो इनका ये कहना है देयर इज नो माउंटेन फॉर इंडिया टू रिट्रीट टू एंड वॉच द यूएस, रशिया एंड चाइना टीयर ईच अदर अपार्ट। मतलब क्या है इस लाइन का, देखिए जो आज का वर्ल्ड है इट इज डीपली इंटीग्रेटेड,
कंप्लीटली ग्लोबलाइज्ड, इंटीग्रेटेड, एक बहुत ही ऐसा समय है कि अगर एक भी जगह पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना तो वो दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को अफेक्ट करती है। तो इंडिया के पास एक अलग सी आइसोलेटेड जगह है ही नहीं कि वो जाके कहीं बैठ जाए और सारे तमाशे को देखे। वी विल बी अफेक्टेड समहाउ एंड डेफिनेटली सो, यही इस लाइन का मतलब है। जो रशियन वॉर है यूक्रेन में, उस पर इतना ज़्यादा वेस्टर्न सैंक्शंस लगी रिस्पॉन्स में रशिया पे, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स दे गॉट डिस्ट्रप्टेड कंप्लीटली, फूड सप्लाई चेन्स अफेक्ट हो गए, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, सब कुछ हो गया। आपको क्या लगता है कि इंडिया उससे अनअफेक्टेड है? इंडिया में हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से, जब से मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट किया है, कि इंडिया की करेंसी इतनी डेप्रिशिएट कर रही है, हमारे यहाँ से जो FPIs हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो बैकआउट कर रहे हैं, सब कुछ आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? ये इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वॉर है, सप्लाईज नहीं है, सप्लाई चेन डिसरप्टेड है यूक्रेन की वजह से, तो हम अफेक्ट ही नहीं हो रहे, हम क्या फायदा उठा रहे हैं इस चीज का? सो चाइनीज स्कॉलर इज somewhat very very illusionary here। और इंडिया की बात करें, सी राजा मोहन जी का ये कहना है कि इंडिया तो ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इतने डिवास्टेटेड हो चुका था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम उसका देखें तो वी टेक नो जॉय इन वॉचिंग द वॉर इन यूक्रेन, नॉट एट ऑल। ओके, हम तो चाहते हैं बल्कि दोनों डायलॉग करके आपस में सुलह कर ले, और हमारे लिए तो बल्कि और दिक्कत है, क्योंकि हम तो प्रॉपरली वेस्ट को भी नहीं छोड़ सकते, और रशिया जिसको एक टेरर स्टेट ही सबने डिक्लेयर कर दिया, हम उसके साथ इतनी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप है, इतनी पुरानी फ्रेंडशिप है, हम उसको भी नहीं तोड़ सकते। हमारे लिए तो रशिया का केस देखें तो और डिफिकल्ट है। अगर हम करंट टेंशन्स की बात करें जो ताइवान में बॉयल हो रही हैं, अगर बाई चांस एक वॉर के रूप में तब्दील हो गई तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है इट विल सिंक इवन फास्टर, राइट, एंड इट विल टेक इंडिया डाउन विद इट। अगर ये नीचे गिरेगी तो इंडिया ऊपर माउंटेन पे नहीं बैठा रहेगा, वो नीचे इसके साथ गिरेगा इस डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के, राइट। अगर हम ताइवान के जियो पोलिटिकल लोकेशन की बात करें, इट हैज गॉट अ वेरी स्पेशल प्लेस, राइट। और अगर हम US चाइना के रिलेशंस में बात करें, ताइवान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमेशा से, फ्रॉम द स्टार्ट। तो फिर इसकी जो सेंट्रलिटी है, स्पेशली जो ताइवान की काफ़ी मैन्युफैक्चर करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर, बहुत सारे फूड स्टफ्स, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, आपको पता होगा। इनफैक्ट कोविड-19 के टाइम पे ताइवान ने हमारी बहुत मदद की थी। हमारा बैक चैनल वो है, काफ़ी हमारी बातचीत है। हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो नहीं है, क्योंकि हम चाइना को ही कंट्री मानते हैं, ताइवान को नहीं मानते, लेकिन हम ताइवान से एक अनऑफिशियल लेवल पे काफ़ी हमारा संबंध है इंडिया का। तो ये भी अफेक्ट हो जाएगा, और बहुत कुछ, एक एशिया में वॉर जो होगी तो वो हमारे लिए गलत ही है, ऑब्वियसली। तो अब देखिए, ये जो चाइनीज स्कॉलर है, जो उन्होंने कहा है कि चाइनाज प्री ऑक्यूपेशन विद ईस्ट चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट्स, इन सब में अगर वो साउथ चाइना सी और इन सब में घुसा रहेगा तो इट विल रिड्यूस बीजिंग्स अटेंशन टुवर्ड्स इंडियन ओशन, और इससे बेनिफिट किसको होगा? इंडिया को। ऐसा उस स्कॉलर का कहना है कि इससे मतलब इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को ले लेगा और अपना जो मैरीटाइम पावर है उसको स्ट्रेंथन कर लेगा। जब तक ये लड़ते रहेंगे उतने टाइम में हम खुद को स्ट्रेंथन करते रहेंगे, और इंडियन ओशन रीजन में हम सबसे पावरफुल प्लेयर इमर्ज कर जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा है, ओके, However, this देखिए, इनका ये है कि that China's problems on the eastern frontier would open up strategic opportunities for India, however, is a myth। ये एक myth है। क्यों? अब आपको with example समझाती हूँ। चाइना का एक कॉन्फ्लिक्ट था USA के साथ, ताइवान के, USA और चाइना के बीच में ताइवान क्राइसिस ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने 3 ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो ये ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस जो है ये 1950s का इशू है कि बार बार जो निक्सन और वो जो US प्रेसिडेंट्स होते हैं वो बार बार अपनी वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज देते थे चाइना को डराने के लिए कि हम आज भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उस रीजन में, और चाइना को बैकआउट करना पड़ता था। लेकिन ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अब देखिए, इसका ये कहना है इस एडिटोरियल का कि 1950s में भी था ताइवान क्राइसिस, तो है ना, आपको याद है नहीं ये चीज़? लेकिन तब भी साइनो इंडियन जो टेंशंस हैं वो और ही बढ़ी, बल्कि इतनी बढ़ गई कि 1962 वॉर ही हो गया वहाँ पे। तो इससे आप ये मत समझिए कि अगर चाइना कहीं और अपने कॉन्फ्लिक्ट में बिजी है तो इंडिया के साथ वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन करना जानता है, उसके पास हमेशा टाइम रहता है हमसे यूनिलैटरली हमारा स्टेटस को चेंज करने का। Okay, China's growing problems in the Western Pacific over the last decade have not seen any diminution of Beijing's ambitions in the Indian Ocean। जैसा कि मैंने बताया, अगर वो ईस्ट चाइना सी में इन्वॉल्व है, साउथ चाइना सी में इन्वॉल्व है, इससे
इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो एम्बिशंस इंडियन ओशन में है वो कहीं भी अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास अब एक अलग तरह की फ्रेश पॉलिटिकल विल है, इकोनॉमिक मसल है, ग्रोइंग नेवल कैपेबिलिटी है। तो वो एक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यू कैन ऑलवेज नोट दिस डाउन, कि वो अब तैयार है परस्यू करने के लिए एक टू एशियन टू ओशियन स्ट्रैटेजी, टू ओशियन स्ट्रैटेजी के लिए एक इंडियन ओशन और एक वेस्टर्न पैसिफिक या साउथ चाइना सी, ऐसा वो करने के लिए तैयार है। ओके, तो टू ओशन स्ट्रैटेजी में एक है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और एक है इंडियन ओशन। अब दोनों को वो अपने एम्बिशंस दोनों में मेंटेन करने के लिए इतना सक्षम है। देयर इज ऑल्सो एन इंडियन फ्लिप साइड टू लियोज। देखिए, अब देखिए एक और चीज इस आर्टिकल ने, इस एडिटोरियल ने कही है कि चाइना जब कॉन्फ्लिक्ट में लॉक्ड है पूरा यूएस के साथ, तो इंडिया ऐसा ऐसा उस आर्टिकल ने, जो चाइनीज स्कॉलर ने लिखा, उसमें लिखा था कि इससे क्या होगा, जो चाइना होगा वो काफ़ी अकोमोडेटिव हो जाएगा इंडिया के कंसर्न को लेके, थोड़ा थोड़ा वीक होने लग पड़ेगा, थोड़ा ध्यान नहीं देगा अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे, उधर यूएसए और इन चीज़ों में घुसा रहेगा। तो इंडिया का जो भी कंसर्न है, इंडिया की जो भी डिमांड्स हैं, वो गिव इन करने थोड़ा हो जाता है ना। जब एक कंट्री वीक होती है तो फिर वो बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये लेकिन फिर सी राजा मोहन जी ने कहा है, ये तो हैज़ बिन परसिस्टेंटली अनरियलाइज्ड होप इन दिल्ली, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। दिल्ली होप करती है कि शायद वो हमारे कंसर्न्स को भी समझ ले, लेकिन वो कितना वीक हो, वो कभी इतना वीक नहीं होता कि हमारे कंसर्न्स को समझ ले। और इस एडिटोरियल का ये कहना है कि इंडिया की प्रॉब्लम जो चाइना के साथ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है यूएस की पॉलिसीज जो एशिया में है। ठीक है, जो हमारे बायलेटरल डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और चाइना के, उसको अलग वे में देखा जाना चाहिए। ओके, अब यही चीज़ इन्होंने कही है, बट दैट हैज़ लिटिल इम्पैक्ट। ओके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डिस्कस। देखिए, इसमें ये क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, जो हमारे बीच में ग्रोइंग पावर गैप है बीजिंग और स्पेशली इंडिया में और उसके बाकी नेबर्स में, ये काफ़ी दिक्कत क्रिएट करता है। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जड़ है वो ये है। अभी देखिए, एक सोल्यूशन पढ़ूंगी मैं जो इस एडिटोरियल ने दिया, बहुत अच्छा, आप भी अच्छे से सुनिए, आप चाहें तो नोट डाउन करिए, ठीक है। और इट मस्ट, देखिए इसमें ये लिखा है कि बीजिंग को मतलब मन ही नहीं करता कि वो हमारे साथ अच्छी तरह से बिहेव करे और ये सब वगैरह। और देखिए इसमें ये लिखा है कि चाइना को ऐसा लगता है कि अगर बाय चांस हम वॉशिंगटन से यानी यूएसए से अपनी थोड़ी दूरी भी मेंटेन कर लेना, ऐसा नहीं होता कि चाइना हमारे साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू हो जाता है। आप पहले देखिए, यूएसए और इंडिया कितने ही अच्छे दोस्त थे। और यूएसए तो हमारे अगेंस्ट था, पाकिस्तान के साथ हुआ करता था। मैं हिस्टोरिकल टाइम्स की बात कर रही हूँ, तब भी 1962 वॉर हुई ना, तब भी उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया ना। इससे कोई मतलब नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि यूएसए में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए यूएसए के साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि चाइना भड़क जाता है और चाइना इसलिए हमारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना वैसे भी हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करेगा। ओके, तो यही इन्होंने कहने की कोशिश की है। ओके, रशिया सीम्स टू शेयर दिस असम्पशन। अब देखिए, पता है इसमें क्या लिखा है कि बीजिंग को लगता है, यानी चाइना को लगता है कि वेस्ट एक टर्मिनल डिक्लाइन में है, बिल्कुल ही उसकी बुरी हालत चल रही है। यूएससी की हेजेमनी यानी डोमिनेंस कम हो रही है, उनका सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर सब कम हो रहा है, और जो ये बैलेंस है, ये अब शिफ्ट होकर उनके हाथ में आ रहा है। ठीक है, अब सब कुछ अपने फेवर में कर सकते हैं, और रशिया भी यही समझती है। ऐसी एडिटोरियल का कहना है कि रशिया की भी यही असम्पशन है जो चाइना की है, और ये जो शी और पुतिन है, दोनों ही ये समझते हैं एक वीकेंड वेस्ट जो होगा वो रोक ही नहीं सकता रशियन अटेम्प्ट जो वो रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर को, यानी कि यूक्रेन वाले क्राइसिस की बात कर रही हूँ मैं। तो दोनों ने ऐसा खुद को समझा हुआ है, पुतिन और शी ने, कि हम बहुत डीप पॉलिटिकल जीनियस हैं। पर इस एडिटोरियल का ये कहना है कि दोनों ही ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी खुद की पावर को, और अंडर एस्टिमेट करते हैं वेस्ट की रेजिलियंस को, यानी कि वेस्ट के रेजिस्टेंस को। ओके, अब देखिए क्यों इस एडिटोरियल ने ये बात कही है, क्योंकि ये जो मिस कैलकुलेशन है वो इसलिए है क्योंकि 6 महीने हुए हैं इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के शुरू हुए, लेकिन अभी तक तो हमें ऐसा कहीं नहीं दिख रहा कि पुतिन एज विक्टोरियस इमर्ज होता, तो हमें कहीं नहीं दिखा। किसी भी तरह की विक्ट्री हमें अभी तक तो दिखी नहीं, है ना। और इन्होंने सेम बात कही है जो शी की चाइना है, इट विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू इमर्ज अनस्कैथ्ड फ्रॉम एस्केलेटिंग कॉन्फ्रंटेशन विद द यूएस। आप बिल्कुल ये समझ के मत चलिए कि चाइना जीती हुई है ताइवान क्राइसिस में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
तो यही इन्होंने कहने की कोशिश की है। और देखिए, जैसा कि आपको मैं और फर्दर इवेंट्स बताऊं कि यूरोप की अगर हम बात करें, जो रशियन एग्रेशन वहाँ पे हुई है, यूक्रेन क्राइसिस ने इतना कंपेल कर दिया वेस्ट को, बल्कि साथ आने में, जैसे फिनलैंड और स्वीडन, उन्होंने नाटो को ज्वाइन करने का वो कर दिया है, अपना वो एप्लीकेशन डाल दिया है नाटो को ज्वाइन करने के लिए। देखिए, स्वीडन और फिनलैंड है हमेशा से न्यूट्रल स्टेट्स रही हैं, उनका मुद्दा ये रहा है कि वो किसी भी ऐसे ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगी, मिलिट्री ब्लॉक को, और वो कोई भी लड़ाई होगी वो उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर उसका साथ नहीं देगी। अगर किसी लड़ाई को अपनी रिफ्यूलिंग की अगर बाई चांस स्वीडन में रुकना है तो वो रुक सकते हैं, किसी भी दोनों को डायलॉग करने के लिए स्वीडन में आना। आप क्यों देखते हैं हर चीज़ जिनीवा स्वीडन, इन्हीं में क्यों हुई है, हर कॉन्फ्रेंस वहीं क्यों हुई है? क्योंकि स्वीडन एक न्यूट्रल स्टेट की तरह एक्ट करता है आज तक, है ना, कि कोई अगर किसी दो कंट्रीज जो लड़ाई में है तो उन्होंने बातचीत करनी है, सुलह करनी है, तो स्वीडन में आके कर सकता है। लेकिन उन्होंने अब फुल सपोर्ट दिखा दिया है यूएस की साइड को, तो आपने कंपेयर कर दिया वेस्ट को साथ आने में, है ना। स्पेशली आप एशिया में देखिए, जापान, अब उसको इतनी दिक्कत होगी, इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जापान जो आज तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके अभी तक उन्होंने आर्म्स ही गिव अप की हुई है अपनी, तो वो सोच रहे हैं कि हमें तो थोड़ा अपनी री आर्मामेंट पे ध्यान देना चाहिए, हमको अपना थोड़ा ऐसी कोलिशंस बनानी चाहिए चाइना के अगेंस्ट, जिससे हमें कोई खतरा ना हो। कल को जापान पे अगर अटैक हो गया चाइना द्वारा तो बल्कि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो वेस्ट को, आप ये मत समझो कि वो वीकन हो जाएगी। तो ये जो अनरियलिस्टिक एक्सटर्नल कैलकुलस है, तो ये आप अपने ही बबल में हो, आप ये गलत समझ रहे हो कि आप सबसे पावरफुल वो हो, पॉलिटिकली जीनियस हो बहुत ज़्यादा। ओके, देखो, इन्होंने ये कहा है कि जो पुतिन और शी है, नाउ दे आर प्रोबेबली रूलर्स फॉर लाइफ, अपनी अपनी डोमेस्टिक उसमें, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन आए दिन पुतिन जी चेंज करते रहते हैं, तो ही विल बी फॉर एवर रूलर जब तक वो है। वैसे ही शी, आपको पता है पार्टी कांग्रेस होने वाली है उनकी, शी, तभी तो ये सब चल रहा है, और क्यों, उनको भी तो दिखाना है कि मैं एक बहुत पावरफुल लीडर हूँ। तो ठीक है, पर उन्होंने ये कहा है कि पर ये ठीक है, आप हो गए अपनी जगह, आप रूलर्स हमेशा के लिए, लेकिन इट इज़ अनरियलिस्टिक टू इग्नोर द प्रो वेस्टर्न टेंडेंसीज जो आपकी कंट्री में है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे रशियंस जो हैं वो यूएसए पढ़ने जाते हैं, चाइनीज़ बहुत सारे हैं जो यूएसए पढ़ने जाते हैं। तो ये जो वेस्टर्नाइजर्स हैं, जो आप अपनी कंट्रीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि अपना ही आप मीडिया चैनल है, न्यूज़ चैनल भी इनके खुद के ही हैं, बस अपनी अच्छाई दिखानी है पूरे 24 घंटे, ये सब होता है वहाँ पे। जब फिर यही लोग जो अपनी कंट्री से यूएसए में पढ़ने जाते हैं, आपको पता है यूएसए में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा। तो जब वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ते हैं, वो अभी शांत ज़रूर हैं पर डिसअपेयर नहीं हुए हैं। ये जो वेस्टर्नाइजर्स हैं वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ तो फ्रीडम इतनी है। तो डू नॉट ओवर एस्टिमेट योर पोलिटिकल क्लाउड। तो ये जो चाइनीज स्कॉलर हैं लिू जोंगीज, इनकी जो सजेशन है कि दिल्ली बैठ के देख सकती है इन सारी चीज़ों को, ये बिल्कुल ही फ्लॉड है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारी ये जो हमारा अपना एक तरीका होगा इस पूरे क्राइसिस में, ये जो चल रहा है वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग का ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, इसे कैसे डील करना है, हमारा खुद का वे होगा। अब देखिए, इन्होंने सजेशन दी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। देखिए, इन्होंने ये कहा है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो पिछली गलतियां हुई हैं मिस जज करने में, जो आपने फ्रीक्वेंट शिफ्ट को देखा है ग्रेट पावर रिलेशंस में, उससे सीख लीजिए, अपने पास्ट से सीख लीजिए, ताकि हम आज उसको अप्लाई कर सकें, गलतियां पुरानी दोहराई हुई आज ना दोहराएं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है, ऑलराइट, इसेंशियल स्ट्रेटेजिक प्ले दैट मस्ट गाइड इंडिया इन द कमिंग ईयर्स। किस तरह का स्ट्रेटेजिक प्लेयर, किस तरह की हमें पॉलिसी अपनानी चाहिए? सबसे पहला तो हमें जो पावर गैप है चाइना के साथ, उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से जो चाइना और हम में गैप है। जैसे मैंने बताया था, हम $2000 पर कैपिटा जीडीपी है, वो $9000 पर कैपिटा जीडीपी है। सबसे पहले तो इसको कम करो, और क्या करो आप सबसे चीज़ अपनी कैपेसिटी, ताकि बीजिंग हम पे कोई एग्रेसिव एक्शन करे उसको एनहांस करने की कोशिश करो, कल को हम लड़ सके लैंड पे, मैरीटाइम फोर्स फ्रंटियर्स पे, एयर में, हर जगह, और इंडो पैसिफिक में भी एक रीबैलेंस करने की कोशिश करो। वहाँ पे कभी ऐसा ना हो कि चाइना का ही डोमिनेंस हो जाए पूरा। ओके, अब एक चीज़ और है जो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंटली बताना चाहती हूँ। देखिए, कभी भी आप बाकी कंट्रीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, कीनिया में क्या हो रहा है, not important to you, but you cannot ignore your neighbors. What is going on in Sri Lanka, the economic crisis, you can't ignore that. You cannot ignore the domestic politics of Pakistan as well. It is important to you, always remember that. तो वैसे ही ये हमें जानना ज़रूरी है
देखिए जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, वो हमेशा एक एक्सटेंशन होती है डोमेस्टिक सिनेरियो की। जो जैसे हमने देखा चाइना के केस में, चाइना का इलेक्शंस आने वाले हैं, बाइडन की कंट्री में भी इलेक्शंस आने वाले हैं यूएसए में, इसलिए दोनों को दिखाना है कि हम दोनों पावरफुल लीडर्स हैं, वरना दोनों अपनी कंट्रीज में हार जाएंगे। वैसे ही ये जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, यानी कि हमारे तरफ रवैया, इंडिया की तरफ जो हमारा रिश्ता, वो कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिकली इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी जैसे वीक है। बहुत कुछ ऐसा है, जैसे बाजवा जो वहाँ के हैं, वहाँ की मिलिट्री के लीडर हैं, उन्होंने भी काफ़ी इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट करना शुरू कर दिया है। जैसे हमने कल एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, जो शहबाज शरीफ जी हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करके अपने मामलातों को सुधार सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, तो इसीलिए हम देखते हैं। अब देखिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको देखनी है, कि जो इमरान खान है वहाँ के फॉर्मर पीएम, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है वहाँ की पुलिस द्वारा एक टेररिस्ट। क्यों? क्योंकि वो जो अपनी स्पीचेस दे रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनमें जो जिन तरह की बातें कर रहे हैं उन पे अप्लाई किया गया है एंटी टेररिज्म एक्ट। ओके, ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो वैसे अपनी मर्जी से कभी सर्च कर सकते हैं। आपको पता होगा कि उनके एक एड हैं, पॉलिटिकल एड शहबाज गिल, उनको सिडिशन के केस में कैद कर लिया गया। तो इस वजह से वो काफ़ी कह रहे थे कि मैं हर उस इंसान के अगेंस्ट एफआईआर और बहुत सारी कंप्लेंट्स केस फाइल करूँगा, जिस जो अगर हमको ऐसा करेगा, हमको हरास कर रहे हैं, ये सब वगैरह। तो उनको एक टेररिज्म में डिक्लेयर कर दिया। देखिए अब आपको इस केस में एक चीज़ थोड़ा थोड़ा एक ऊपर से देखने की कोशिश करिए। साउथ एशिया में, अगर मैं आपको बोलूँ, साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा एंटी टेरर लॉज का प्रचलन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को श्रीलंका में। श्रीलंका की आज ही की न्यूज़ है ये, कि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इमरजेंसी सिचुएशन या उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं है, उनको भी एंटी टेरर लॉ के तहत वो कर लिया, कैद कर लिया। आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, मतलब एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन अपनी बात भी नहीं रख सकता, उनको कैद कर लिया एंटी टेरर लॉ में। म्यांमार तो एक एक्सट्रीम जनता केस ही चल रहा है, म्यांमार में तो वो मार ही देते हैं, एग्जीक्यूट ही कर देते हैं, क्या वो क्या कैद करेंगे। तो वो तो एक्सट्रीम। फिर आप देख सकते हो इंडिया के केस में देखें तो यूएपीए, आपको अगर पता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये थोड़ा आप इस चीज़ को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कीजिए। ओके, अब हम देखते हैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट कि क्या क्या बचा है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्या हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा में बहुत सारा फ्लड सिचुएशन चल रहा है, आपको पता है 7 लाख पीपल हैव बीन डेवास्टेटेड, इन द सेंस दे हैव टू लीव देयर होम्स, वेरी वेरी अफेक्टेड, बहुत सारे फ्लड्स की वजह से, है ना। तो उनको जो सरकार ने रिलीफ किट्स प्रोवाइड किए हैं, उनको विमेन के लिए और गर्ल्स के लिए, उनके मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के लिए उन्होंने प्रोवाइड की है सैनिटरी पैड्स। अब देखिए आप प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, एक ब्यूटीफुल स्टेप है, लाइन ऑफ एक्शन है, जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी ली जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है जब फ्लड सिचुएशन होती है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्या होता है जब फ्लड सिचुएशन होती है, कि जो लड़कियां या विमेन होती हैं वो दे इवन, क्योंकि उनको घर छोड़ना होता है, फटाफट से घर छोड़ना होता है ताकि उनका घर डूब रहा होता है। तो जब वो इतने हड़बड़ी में घर छोड़ रही होती हैं, तो वो जो क्लोथ्स यूज़ करती हैं, स्पेशली विलेज एरिया की बात कर रही हूँ, आपको पता है कि कहीं लोग सैनिटरी पैड्स नहीं बल्कि क्लोथ्स, बेडशीट्स के फटे हुए कपड़े, ये सब यूज़ करते हैं, पिलो कवर, है ना, साड़ी का फटा हुआ वो, तो वो ये चीज़ें भी नहीं अपने साथ ले जाना, भूल जाते हैं, क्योंकि उसको सुखाना, फिर उसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना, उस ट्रेंड मटेरियल को ही, ये सब कुछ बहुत अनहाइजीनिक भी हो जाता है, स्पेशली फ्लड की सिचुएशन में जहाँ ऑलरेडी इतने मस्कीटोज और क्या क्या होंगे। तो एक बहुत अच्छा विमेन और गर्ल्स को क्यों अलग सी थोड़ी सी रिलीफ की ज़रूरत होती है, क्यों हम बार बार केस स्टडीज़ में ये पढ़ते हैं कि विमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज ग्रुप को सबसे पहले इनको वो किया जाना चाहिए, रेस्क्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। आप इस वे से सोच के देखिए कितना अच्छा स्टेप है ये। ऐसे ही अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, इनकी मेडिसिन वो स्टॉक करना भूल जाते होंगे, उनको रेस्क्यू करिए, उनको क्या पता ब्रेथलेसनेस हो रही हो, कुछ भी हुआ, सबसे पहले उनको वो करिए। लेकिन ये इनिशिएटिव इज एक्चुअली वेरी वेरी appreciable. Okay, let's move on to the next article.
अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन का एक इशू है। जो विजिंजम, एक केरला के तिरुवनंतपुरम में एरिया में एक पोर्ट है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके लिए अराउंड 10 एकड़ की जो लोग वहाँ से बेघर होंगे, जिस एरिया पे ये पोर्ट कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, उनके लिए 10 एकड़ सरकार ने बोला है वहाँ की हम अलग से हाउसिंग स्कीम के लिए, जो फिशरमैन फैमिलीज हैं वहाँ से जो बेघर होंगी उनके लिए हम फ्लैट्स बनाएंगे वहाँ पे। और ऐसा कुछ उन्होंने बोला 3,000 फैमिलीज को वो फ्लैट्स प्रोवाइड होंगे, ये सब वगैरह, और रिलीफ कैंप्स भी मिलेंगे। तो पर अभी भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ के लोग, क्योंकि ये जो पोर्ट्स बन तो जाते हैं, इन तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ तो जाते हैं, लेकिन ये जो कोस्टल इरोजन हिट फैमिलीज हैं, फिशरमैन हैं, ये इनके घर, इनका रिहैबिलिटेशन, इनका लाइवलीहुड, ये इसके बारे में क्या आपने प्रोमिसेस कर दिए लेकिन एक्शन कब लोगे? तो यही चीज मतलब ऑन पेपर होनी चीजें बिल्कुल अलग है, लेकिन इन रियलिटी चीजें होनी बिल्कुल अलग होती हैं। तो यही इन्होंने मांग की है कि पहले आप चीफ मिनिस्टर आए, हमसे बात करें। सो यू आर लुकिंग एट द वे, ये भी एक एथिक्स का ही मैं पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रही हूँ आपको। Fearing ban, center rushes to Supreme Court, gets relief on IOA affairs। देखिए क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया था, हमें फीफा ने बैन कर दिया हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, तो अब हमें डर है कि कहीं हमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी हमें बैन ना कर दे, सस्पेंड ना कर दे। तो क्यों ऐसा हमें ऐसी आशंकाएं हैं? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, एक ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ये जो मैंने आपको बताया था COA, एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा था इंडियन ओलंपिक का जो वो है वो भी अफेयर्स यही संभालेंगे, यही कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ही संभालेगी। तो ऐसा बाई चांस ना हो कि हमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी वो कर दे, तो फटाफट से सेंटर रश की सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप इसको स्टे करते हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभी इंडियन ओलंपिक के जितने भी अफेयर्स हैं उसको नहीं करेगी ये कमेटी, जैसा चल रहा है वैसे पहले जैसा ही चलेगा, हम देखेंगे, इस पे जजमेंट देंगे। Okay, Constitution bench to hear Delhi plea. Okay, let's see what this is all about. Okay, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में एक कोई ना कोई हर दिन चीज चलती रहती है, जैसे कि आप दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पे देख रहे हैं काफी वाद विवाद, CBI इन्वेस्टिगेशन। वैसे ही एक और मुद्दा है जो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, वो है कि कौन किसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर, किसके कंट्रोल के अंडर आते हैं IAS ऑफिसर्स, ये सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स वगैरह किसके कंट्रोल के अंदर आते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिनको लीड कर रहे हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने बोला है कि हम सुनेंगे इस लीगल बैटल के बारे में, अपना जजमेंट देंगे। ओके, सो लेट्स सी, जब ये आएगा मैं आपको पूरा सिचुएशन समझाऊंगी कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये वाद विवाद क्यों है। अब एक पैनल है, एक इस पैनल की एक मीटिंग हुई है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखिए पहली मीटिंग हुई है एक कमिटी की, कमिटी ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की, जो हेड की जा रही है यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी द्वारा, जिनका नाम है संजय अग्रवाल। उन्होंने अब काफ़ी डिस्कशंस किए अपनी पहली मीटिंग में, जैसे नेचुरल फार्मिंग, चेंजिंग क्रॉप पैटर्न, इंश्योरिंग MSP टू फार्मर्स, और इन तरह की चीज़ों के बारे में। लेकिन और उन्होंने कहा कृषि विज्ञान केंद्र को भी और बढ़ावा देना, जिससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट इन एग्रीकल्चर, ये सब वगैरह। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है SKM, उन्होंने कहा है कि हम ऐसी कमेटियों के उसमें पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आप MSP को स्ट्रेंथन या MSP को लीगलाइज करने के बजाय आप इसको ऐसी बस और तरह के हमें वो देके उसको बैक बर्नर पे रखना चाहते हैं। MSP आप कभी लीगली इंश्योर करोगे ही नहीं। पार्लियामेंट्री पैनल समन्स, अब देखिए बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं अमेजोन के, ट्विटर के, नेटफ्लिक्स, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको समन किया है, बुलाया है। एंटायर कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस जो डिजिटल मार्केट में चल रही हैं, कंपेटिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना जिससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाती है, दूसरा जो कंपनी है वो अफेक्ट हो जाता है, मार्केट वाइप आउट कर जाना, बहुत सारे जो एंटायर कंपेटिटिव वो हैं, उस पर क्या बातचीत की जाए, एक फाइनल क्या ड्राफ्ट तैयार किया जाए। देखिए एग्जिस्टिंग एक्ट है कंपटीशन कमीशन एक्ट, जो आपको पता है 2002 का, उसको फिर अब अमेंडमेंट के लिए बिल लाया गया है, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी टाइम नहीं है वरना मैं फिर दोबारा डिस्कस कर देती। तो उसको ये जो चेंजेस आए हैं, देखिए कितना डिजिटली प्रोलिफरेट हो चुका है सब कुछ। इनफैक्ट अब तो देयर इज अ थिंग कि शायद थिएटर्स की जगह ज़्यादा प्रेफरेंस लोग नेटफ्लिक्स पे मूवीज आने लगी है, इनको देने लगे हैं।
तो जब इतना प्रोलिफरेशन हो रहा है तो कोई गलत चीज़ें ना हो डिजिटल उस पे भी तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दे हैव टेकन दिस कमिटी हैज़ टेकन दिस इन देयर हैंड्स एंड दे आर टॉकिंग टू द टॉप एग्जीक्यूटिव्स कि क्या क्या आपकी सजेशंस हैं, उनको डायरेक्शंस देना, ये सब कुछ बातचीत चल रही है। ओके, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीट हुई है, तो जहाँ पे इंडिया ने कहा है इस मीटिंग में, आपको पता है ये मीट होने वाली थी, मैंने डिस्कस किया था, प्रमोट कॉमन सिक्योरिटी थ्रू डायलॉग एंड कॉपरेशन। इस पे इंडिया ने कहा है बाकी कंट्रीज को ये कहते हुए संबोधित किया है कि हमें एक दूसरे की सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और जितने भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स वाला ये जो यहाँ पे लिखा है, इन्होंने चाइना को रेफर किया हिडन वे में, कि वो जो हमारे साथ उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यूनिलैटरली ही हमारे से की हुई जितनी भी अभी तक अग्रीमेंट्स थी, बॉर्डर सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स थी 2003, 1993, ये जितनी भी अग्रीमेंट्स थी सबको खुद ही उन्होंने खारिज कर दिया, इसे नहीं होना चाहिए। जहाँ तक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है, ये हिंट है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाले का उस पे, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, यूक्रेन इन्वेजन। हम देखिए रशिया को डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक हिंट है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये किसने कहा है? रुचिरा कंबोज जी ने, जो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस को। रुचिरा कंबोज जी की मैंने स्पीच भी आपके साथ डिस्कस की थी, जब उन्होंने कहा था कि आप टेररिज्म को यूएनएससी कुछ ज़्यादा नहीं करती और यहाँ पे बहुत ही डिप्लोमेटिक है सब कुछ यूएनएससी में, ये सब वगैरह, वीटोइंग पावर्स कई कंट्रीज के पास है, ये वही है, शी इज़ द सेम वुमेन। ओके, अब यही सब इन्होंने यहाँ पे कुछ बोला है। कॉमन सिक्योरिटी बेसिस है कि आप अपहोल्ड करें रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को, ये सब वगैरह इन्होंने बोला। नॉट वेरी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है इसमें। उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशंस एक रियल डेंजर में है, क्योंकि ये एक दिन ओवरटेक कर लिया जाएगा तो सच में डेमोक्रेटिक ग्रुपिंग्स होंगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस से डेमोक्रेटिक बचा नहीं। स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल जब तक रिफॉर्म नहीं हो जाती, जब तक यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होती, 5 लोगों को आपने P5 कंट्रीज को वीटो पावर दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, वही डिसाइड करेंगे। क्यों भाई, पता नहीं कब बनाए ये लोग, ये कब इनके तब हुआ करते होंगे ये लोग, तब होगी एक कॉलोनियल माइंडसेट इनका, या फिर तब होगा ग्रेट पावर राइवलरी। अब तो सब कुछ इक्वल है, सब इक्वल है, तो एक्सपैंड करो, इन्होंने ये कहने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि चाइना की प्रेसिडेंसी के अंदर ये मीटिंग कंडक्ट की गई है, क्योंकि चाइना के पास अगस्त के मंथ की, आपको पता ना, एक एक महीने के लिए शिफ्ट होता रहता है 15 मेंबर्स में। जैसे लास्ट ईयर के अगस्त में इंडिया के पास थी, वैसे ही चाइना के पास है अभी। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक मुझे कल कॉमेंट आया था कि वैल्यू चेन क्या होती है। वैल्यू चेन देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वैल्यू चेन है कि अगर एक प्रोडक्ट बिल्कुल रॉ से स्टार्ट हुआ है तो हर स्टेज पे, जिस स्टेज से वो गुजरेगा, हर स्टेज पे एक वैल्यू ऐड किया जाना उस आर्टिकल में या फिर उस प्रोडक्ट में। तो कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक क्रॉप उगाई गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल टमेटोज उगाए गए, ठीक है, टोमेटोज उगाए गए, फिर उसके बाद उसको प्रोक्योर करने के लिए आ जाती हैं प्रोसेसिंग कंपनीज। प्रोसेसिंग कंपनीज बोले तो जो उसकी टमेटो सॉस बनाएगी, ठीक है, फिर टमेटो सॉस को वहाँ से, तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज आएंगी, ट्रांसपोर्ट कंपनीज लेके जाएंगी प्रोसेसिंग कंपनी से, फिर प्रोसेसिंग कंपनीज अगर टमेटो सॉस बन गई फॉर एग्जांपल, तो उसको ब्रांडिंग करना उसकी, है ना, ये सब ब्रांड प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब करना भी एक वैल्यू एडिशन ही है, क्योंकि वैल्यू ऐड हो रही है, इंफॉर्मेशनल एडिशन हो रही है। फिर एडवर्टीजमेंट्स हुई, फिर रिटेलर्स ने उनको बेचा, फिर बेचा तो फीडबैक लेना, मतलब वैल्यू तो और ऐड तभी करोगे ना जब आपको पता चले लोग आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं, उनको आपके प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं, तो फीडबैक दोबारा लेना, फिर दोबारा नंबर 1 से उसको, जो भी मतलब अगर कोई गलती रह गई है तो उसको दोबारा स्टार्ट से अप्लाई करना स्टार्ट करना, इसे वैल्यू चेन कहते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक टुडेज वीडियो, प्लीज डू दैट।